sunny. सो विपुल, टॉपिक जो है ना वो बहुत ही माउथ वाटरिंग सा है, एंड एवरीवन्स डिजायर इज आल्सो देयर, माय डिजायर इज आल्सो देयर टू हैव समथिंग इन द हिल्स, लेकिन वो बजट जो है ना वो हमेशा बीच में आ जाता है. एंड दिस टाइम सिंस यू हैव ब्रोकन द बजट बैरियर, लेट्स हियर what you have to offer. So without wasting any time, so can you, without wasting much time, can we just straight away come to the topic proper? Why to buy such luxury property in the hills at all? Farmhouses, beach villas. Okay, luxury properties, as the name suggests, is for luxury. It is a status symbol. It enhances the buyer's prestige, social standing, and it also provides you a personal style statement. It's like saying that I have a house on the beach, or I have a property in the hills, or I have a farmhouse, or things like that. So majorly, it is a huge status enhancement. But for a lot of people, it also becomes a white elephant. Uh, uh, Provides you a privilege, but yes, it becomes a white elephant. One, as you rightly said, the budget can be a deterrent, and not just the buying budget. Maintenance of such a property is also an ongoing challenge and a cost. Right. Okay, yeah, maintenance is a problem because you are in one city, the property is in another city, and especially you are not visiting it regularly. Uh, there will be a time gap. Right. So I understand that, but what are the reasons for you to suggest this luxury real estate? ओके, आई वुड से सर कि हर किसी में कहीं ना कहीं एक इच्छा है. जब भी आप घूमने जाते हैं आप, तो आपको लगता है कि काश हमारा भी यहाँ एक घर होता है. एंड एज आई सेड, इट एनहांसेस योर स्टेटस. It I mean, at the end of the day, when you start earning money and you start earning good money, the food you eat is going to be more or less the same. So how do you express that I am improving my financial and social and economic status? By living in better homes, by driving better cars, having better gadgets. And this is one of those. It's a luxury purchase. Okay. So how would this actually work? As to how to go about it in short, how does one go about it? And especially when I'm sure that it must be very costly. So costly on the whole individually it is costly, and that's why we have this idea of having a co-ownership or a fractional ownership. आप देखेंगे हम अभी भी बहुत सारी चीजें फ्रैक्शनल ओनरशिप में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, द हाउसेस वी लिव इन आर nowadays cooperative societies wherein a lot of the things are managed at a central level. Individually, it is provided as an amenity or a facility to all the residents. The clubs we subscribe to are again fractionally owned. None of us owns a club by oneself. So, except for very rich people, I mean, we travel in a plane, which is again for the limited time we use it, and similarly, so it is not that this is a novel concept. It is just कि अभी तक क्योंकि वैसे भी लग्जरी रियल एस्टेट इंडिया में इतना टेक ऑफ नहीं किया. वी आर नाउ ग्रोइंग इन एफ्लुएंस. दैट इज द रीजन व्हाई दिस कॉन्सेप्ट सीम्स नोवेल. Otherwise, we have been doing it in a lot of other places. I mean, अब मैं मान लीजिए गुड़गांव में रहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपना घर शिमला में बनाऊं, लेकिन उसमें दो चैलेंज है. एक तो मैं उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूँ, और मैं उसको मेंटेन नहीं करूंगा. और अगर मैं अकेला खरीदता हूँ 1-1.5 करोड़ का घर, तो मेरे और बहुत सारी चीजों में बाधा आती है. But once in a while, I would like to use it. That is where the fractional ownership thing comes. It gives you the pride of ownership while it is easy on your pocket.
Therefore, it's like becoming a part owner, keep the cost low, and you are able to use it and enjoy it to the fullest. इसको अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो जैसे हमने अभी तक अपने क्लाइंट्स को इसमें करवाया है ट्रांजेक्शन्स, उसमें यू फॉर्म LLP or a private limited company. There was one client who is from affluent family, so they also did it under an HUF. उनके घर के 8-10 लोग इकट्ठे हो गए थे. But if it is not that, if it is not blood relations, then it is you form either a limited liability partnership or a private limited company, and this particular company then holds the property. और जितने co-owners हैं वो उस LLP के पार्टनर्स या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं in the proportion of the contribution there. So that's how, on a very technical level, that's how it works. तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एक्चुअली. जब तुम बोल रहे थे तभी दिमाग के घोड़े आगे दौड़ने शुरू हो चुके थे. तो ये क्या मतलब, इज इट नॉट समथिंग लाइक महिंद्रा रिजॉर्ट्स टाइम ऑन टाइम शेयर बेसिस या स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स हॉलिडे होम्स? देखने में ऐसा लगता है सर, बट देयर आर मेजर डिफरेंसेस. वन, दे आर सेलिंग यू अ टाइम शेयर, नॉट एन ओनरशिप. तो वहां पे ना तो आपको कोई कैपिटल गेन्स है, ना ओनरशिप राइट्स हैं, ना कोई कंट्रोल है, ना ट्रांसपेरेंसी है, एंड इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. इन टाइम शेयर, सबसे पहले तो टाइम शेयर में मैथमेटिक्स खराब होती है. मैं आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू. टाइम शेयर बिजनेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट 50% लोग इसको कभी इस्तेमाल नहीं करें. अच्छा. सो आप जब भी किसी टाइम शेयर वाले से बात करेंगे, आप उनसे पूछेगा कि अगर इफ यू टेक अ सैंपल साइज ऑफ 10 people who have taken टाइम शेयर, 5 of them would have not used it at all. दूसरा क्या होता है सर, आप एक गणित में आपको बेसिक मैथमेटिक्स, इफ यू नोट इट डाउन, लेट अस से कि मैंने आपको टाइम शेयर पिच किया कि 50 प्रॉपर्टीज का मैं आपको टाइम शेयर दे रहा हूँ, जिसका मैं आपसे 10 लाख रुपया लूँ. ओके. Now 50 property, let us assume every property is a 1-bedroom property. So Right. 1 bedroom into 50 rooms. So अगर हम नॉर्मल को ओनरशिप का यूसेज रेशियो देखेंगे, दिस शुड बी 1 रूम के 12 ओनर्स, तो 50 रूम के 600 ओनर्स. सो अगर ये 50 रूम्स की प्रॉपर्टी को को ओनरशिप में लेंगे तो लगभग 600 लोग इसको लेंगे. लेकिन टाइम शेयर क्या करेगा, इसको 6000 लोगों को, because they have to maximize the return on the property which they are holding. Their profit is run from a different perspective. They have to sell the inventory to maximum people possible. और फिर उसको लेयर करते हैं पिंक, व्हाइट, ऑरेंज, अलग अलग तरह के जो यूसेज पैटर्न्स हैं. सो जहां आपको 1:12 के रेशियो में को ओनरशिप में 30 दिन का साल का यूसेज मिल रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 12 इज 30 days. वही टाइम शेयर में सेम यूसेज वुड बी अराउंड 2.5. तो मैथमेटिक्स इज नॉट फेयर. दूसरा, टाइम शेयर में उसके आगे की भी जो सर्विसेज है वो सारी पेड एंड इट इज अ प्रॉफिट वेंचर. अगर आप कभी महिंद्रा हॉलीडेज में गए हैं तो F&B का भी पैसा है, सर्विसेज कोई मेड या कुक यूज करेंगे उसका भी पैसा है. एवरीथिंग इज पेड फॉर ऑन अ प्रॉफिट बेसिस. On the other hand, this type of properties where you are owning the property, so you carry your own food, you carry your own drinks, अपना खुद से बनाए, या वहां जो आपने सेवादार रखा हुआ है वो आपको हेल्प करेगा. थर्ड से टाइम शेयर में देयर इज नो एप्रिसिएशन. मैं आज 10 लाख रुपए का 10 साल का लेट्स से महिंद्रा का एक पैकेज खरीद लेता हूँ. 3 साल बाद अगर मेरे पास उसकी यूसेज बची है तो 7 साल की यूसेज बची है, मैं उसको सेल भी करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ 7 साल ही उसे बेच सकता हूँ. But in a co-ownership, you are an owner. More the time keeps on, with more time, your property is also appreciated. Your investment is appreciating. Therefore, and this is perpetual. मैंने आज co-ownership ले लिया, मैं आगे I'll pass it on to my heirs, to my inheritors. It is not going to end, and the price is increasing, the appreciation is increasing. On the other hand, time share में every year since you are moving away from the user period, तो आपका वो कम होता जा रहा है.
आप ऐसे समझे, आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी, खासकर अगर किसी में एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चर लैंड है, तो फ्रैक्शनल ओनरशिप में ही तो ओन कर रखी होती है कि मेरे पास में मेरे फादर राइट। के 4 एकड़ है, उसमें मेरे फादर, चाचा और फादर के कजन्स, उन सबकी कुछ ओनरशिप है. सो दैट्स हाउ फ्रैक्शनल ओनरशिप इज. दैट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट इन परपेचुएटेड टू. Right. So I got the point कि it is like fractional ownership in commercial property, जैसे पहले भी एक बार आपने एक वीडियो वो किया था. तो मतलब आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, या आपके पास इतने पैसे नहीं है जो आप इसमें स्पेयर कर सकते हैं इसके लिए, तो आपके पास एक छोटा अमाउंट है और आप 5-10 लोग मिल के एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें ऑफ दिस. इज दैट इज द आइडिया, लाइक माइंडेड पीपल. सेंट्रलाइज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि पैसे नहीं है, आई से पैसे हैं फिर भी क्यों लगाना उसके अंदर से. हाँ मतलब वॉट एवर बी द रीजन दैट यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट टू मच ऑफ मनी इनटू दिस, बिकॉज यू विल नॉट बी यूजिंग इट थ्रू आउट. दैट्स राइट सर. राइट. सो बट अभी भी क्वेश्चंस तो अभी भी बहुत सारे हैं विपुल, कि आई मीन कैन यू टेक अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस ओनरशिप, फ्रैक्शन ओनरशिप थिंग, स्टेप बाय स्टेप कि. बहुत ब्रॉडली बता पाऊंगा अभी भी सर. स्टेप वन, फॉर्म अ लीगल एंटिटी. लेट्स से आप यू आर फ्रॉम द कोर ऑफ सिग्नल, तो सिग्नल ऑफिसर्स हॉलिडे होम आप करके एक एलएलपी रजिस्टर करवा लीजिए. और नहीं नहीं यार, उसमें जो मैं तो भी आर्म फोर्सेस का रखूंगा. आर्म उसमें फोर्सेस कर सिग्नल वाला भी होगा, लीजिए. इन्फेंट्री वाला भी होगा. ठीक है, मैं तो आपसे आई एम जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल राइट बात कर रहा हूँ. तो राइट फॉर्म अ राइट. लीगल एंटिटी, एंड देन जो भी उसके अंदर जुड़ना चाहते हैं 8, 10, 12 लोग, they all come form they take shareholding oblique a partnership in that. They pool in their money in that particular entity. Then they find a property, the entity pays for the property, and they the entity maintains, and the owners use the. So इस entity का एक ही वो रहेगा asset which is that particular property, single asset which is that property जो जिस ओके. property को. हाँ. राइट राइट. सो हाउ वुड द यूसेज बी डिसाइडेड इन दिस थिंग. मतलब आपने ले ली प्रॉपर्टी, 12 लोगों ने मिलके ले ली से. I'm just hypothetically I'm saying 12 people have taken it. So how would they decide the usage? जैसे 12 लोगों ने ली तो 1/12, आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि सब लोगों ने बराबर प्रोपोर्शनेट शेयर डाला. Right. तो 1/12 का सबको एक एक बेसिक रेशियो मिला यूसेज का. एंड ये 12 ही लोग हैं जिन्हें डिसाइड करना है. एंड दे आर पीपल ऑफ नियरली इक्वल स्टेटस, जैसे हम लाइक माइंडेड भी कहते हैं. लाइक माइंडेड इज बेसिकली पीपल हु हैव द सेम काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग. दैट्स Right. वेयर माइंड स्टार्ट गेटिंग थिंकिंग लाइक एक दूसरे के साथ. तो 12, 15, 18 लोगों का जो ग्रुप है, ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई किस तरह से कितने दिन हम यूज करेंगे, कितने लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मेंटेनेंस होनी है तो वो क्या मेंटेनेंस होनी है, कि इसमें कितने लोग जो है वो इन्वॉल्व करेंगे. मान लीजिए आपने एक विला खरीदा है, तो आई विल हैव अ परमानेंट पार्ट टाइम दिस थिंग कुक एंड मे बी अ परमानेंट केयर टेकर. सो वो सब चीजें डिसाइड हो जाती हैं, उस हिसाब से खर्चे हो जाते हैं. And people have proportionate share and they have proportionate usage. अब बात ये आती है कि मैं इसको यूज प्रोपोर्शनेट भी कर पाऊं या नहीं, तो सर ये आपस में इट्स लाइक 12 ही लोग हैं, आपको बहुत लंबा चौड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं करना है, या 15 ही लोग हैं, उनने आपस में बात करी और मैनेज करेंगे इसको. तो यूसेज के लिए जो बायलॉज ये 12, 15, 18 लोग बनाते हैं, वही उनके So you can, गाइडिंग प्रिंसिपल. right. And you can also use it for as a homestay or something. You can put it on Airbnb and all. You can use it as a. वो तो आपकी प्रॉपर्टी है ना सर. मेरा उस, मान लीजिए 12 लोग हैं, 1 महीने मेरा है, उस 1 महीने मैं खुद इस्तेमाल करूं, मैं अपने भाई को दूं, मैं अपने ब्रदर इन लॉ को दूं, वाइफ को खुश करने के लिए, मैं अपने सन इन लॉ को दूं, मैं अपने बॉस को बोलूं कि सर आप घूम के आओ, मैं अपने क्लाइंट को भेजूं, वेंडर को, इट्स एंटायरली अप टू मी.
और आई Right. माइट कमर्शियली आई माइट जस्ट पुट इट ऑन बीएनबी या वहां किसी लोकल होटल वाले से टाइप कर लूं, वो तो मुझ पर है। Right, right, right. अभी डिपेंड्स ऑन दी बायलॉज, हो सकता है कि ओनर से डिसाइड करें कि नहीं हम इसको कमर्शलाइज नहीं करेंगे, बट फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी को भी कर सकते But how would the disagreements and disputes be resolved? 10-12 हैं। लोग जहां पे भी आ जाएंगे. सर जैसे बाकी होते हैं, मतलब लेट मी फर्स्ट ब्रॉडली लिस्ट डाउन जो इनमें डिसएग्रीमेंट्स या डिस्प्यूट होते हैं। दो चीजें, यूजेज राइट्स एंड यूजर की ऑब्लिगेशंस। सो Right, मेन क्या डिस्प्यूट्स होते हैं जी, पीक सीजन है, पहाड़ की प्रॉपर्टी है, तो हर कोई बोलेगा जी मुझे मई जून में जाना। right, देन पेमेंट ऑफ ड्यूज, कि अब वो इस महीने के 20,000 रुपये ओवरऑल इकट्ठे होने। उसके बाद इस्तेमाल करने गया विपुल चौधरी, उसने शराब पी करके 3 ग्लास तोड़ दिए। नाउ इट्स अ कॉमन प्रॉपर्टी। सो मेजर डिस्प्यूट्स यही इसी तरह के होते हैं। सो यूसेज के जो बायलॉज रूल्स बनते हैं सर, दे आर अबाउट प्रोपोर्शनल यूसेज। ब्रेकेजेस होंगे तो कैसे होगा, कि भाई आप जैसे हमारे गेस्ट रूम्स में होता है, मूव इन करने से पहले वो इन्वेंटराइज करवाता है सब चीज आपको एक बार के लिए, इसीलिए चेक कर लो सब आपको जो दिया है ये ठीक ठाक है। अगर आपने उसके बाद में वापस जाते हुए, if you have been careless and broken things, you pay. If it is normal maintenance and normal caretake, then those normal things are from a maintenance corpus you have kind of maintained. बाकी सर इंटेंशंस करेक्ट हो, एग्जीक्यूशन ठीक से कर रखा हो, तो चीजें हो जाती हैं। और जब आप ये अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रैक्टिकल वे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग हैं उनमें से कोई एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्रोफेशन को हायर कीजिए, वो आपको बेसिक प्रॉब्लम्स बता देगा। एक लॉयर हायर कर लीजिए, वो आपके जो है वो बेसिक रूल्स बना देगा, एंड उसके हिसाब से चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। बाकी जो है सर, मतलब मोस्ट ये है कि आप इसको ना बहुत ज्यादा बड़ा ना करें। मतलब इफ इट इज अ मैनेजेबल क्राउड, 12, 15, 18 लोग, मैक्सिमम 24 पीपल, इट वर्क्स आउट वेल। तो वो धीरे धीरे 3, 4, 5 महीने में मैं आपको जान जाता हूँ, आप मुझे जान जाते हो। सो द आइडिया इज स्ट्राइकिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ ओनर्स। कितने लोग एक प्रॉपर्टी को, लेट्स से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आपने 10-10 लाख के हिसाब से 15 लोगों ने उसको ले लिया, तो नाउ 15 लोग मैनेज हो जाएंगे। बट अगर आपने उसको कॉस्ट को बहुत रिड्यूस करने के लिए 30 लोग कर लिए, तो ऑब्वियसली देन इट बिकम्स अ लॉट ऑफ चैलेंज। सो इट ऑल software डिपेंड्स ऑन issues. द बैलेंस बिटवीन द नंबर, द कॉस्ट एंड यूजेबिलिटी। So Vipul, software issues तो डिस्कस हो गए, बट कॉस्ट डिस्कस नहीं हुई. कॉस्ट बताएं सर, मतलब अदरवाइज मतलब भी मैं आपको डिस्प्यूट वाली बात पर 1-2 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। जनरली सर, लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, 10, 12, 15 कितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक आपको लीड बंदा अपॉइंट करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज राइट, ऑन हो या मतलब वॉलंटियर या कैसे भी, हु विल डू, हु विल काइंड ऑफ डू द ग्रंट वर्क। एंड अगर आप बड़ी कोई कह रहे हैं कि चलो हम तो पूरा होटल ही खरीद लेते हैं जी इस अरेंजमेंट में, so then maybe you'll need to have an external trustee or a specific manager. And regular, the bylaws should say regular updation of accounts, usage patterns. वो धीरे धीरे 6-8 महीने में सेटल हो जाएगा। एंड फिर जो है सर, साथ मिल करके चीजें हो जाती हैं। वी हैव सीन इट वर्किंग। इनफैक्ट मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ 1999 में, देयर इज समथिंग नियर मानेसर विच इज, वहाँ पर एक कंट्री क्लब है, राइट. and I visited there as a college student, farmhouse. My classmate, still again is a advocate in the Supreme Court. His father and 4-5 of his friends had purchased this farmhouse in country club. And हम सब ऐसे, मतलब वो पांचों के पास चाबियां थी, हम उनके बच्चे जो है वहां जाके गदर करते थे। सो इट वर्क्स आउट। इट इज जस्ट दैट अभी उसका मास इतना यूसेज नहीं शुरू हुआ है, इसलिए लोगों को लगता है, धीरे 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 हो जाता है। 6-8 ग्रेट. महीने में सेटल हो जाता है। क्लब भी तो इस्तेमाल करते हैं, डीएसओ ही जाते हैं ना, सब यूज करते हैं। राइट, राइट, राइट. You're right. So how does one go about
the payment? What is the cost? नहीं होगा सर, शुरू में अगर हम बात करें तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट, अगर 15 लोग हैं, मे बी 5-5, 10-10 हजार, सो दैट यू कैन सेटअप द कंपनी, उसका शेयर होल्डिंग क्रिएट करना, टाइटल क्रिएट करना, सीए फाइलिंग करेगा और वो सब करके, प्लस जो उसमें से बच जाएगा वो कंपनी के अकाउंट में रहेगा। बाकी फिर प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, अगर प्रॉपर्टी आप लेट्स से 60 लाख की ले रहे हो, 10 लोग हैं तो 6-6 लाख रुपए, 1.5 करोड़ की ले रहे हो 10 लोग हैं तो 15-15 लाख रुपए, सो एनीथिंग फ्रॉम 6 लाख टू 15 लाख डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉपर्टी। And then a maintenance deposit for the long term maintenance of the property, तो maybe you know again depending on the property 25 से 50 हजार रुपए पर हेड वो कलेक्ट हो सकते हैं। And then a monthly maintenance of anything from 2 to 3,000 per person, so 20-30 हजार रुपए महीने का वो खर्चा वो कर सकते हैं। So overall अगर मैं करूँ सब मिला करके, अगर छोटी प्रॉपर्टी भी लेते हैं, so छोटी प्रॉपर्टी, इसको जरा प्लीज स्पेसिफाई करो, छोटी प्रॉपर्टी क्या है और बड़ी say a प्रॉपर्टी? 1 bedroom or a 2 bedroom apartment, ओके, ऐसा थोड़ी है कि villas ही हैं, there are 1 and 2 bedroom apartments also. दे विल बी व्हाट, हाई राइज टाइप, मतलब फ्लैट्स टाइप? Not exactly high rise, ground plus 3 जो वहाँ के bylaws allow करते हैं। अच्छा, ओके। एंड ये जो विलास जो जिसकी पिक्चर आपने दिखाई थी वो क्या है? That's a villa, sir. That would be costing around 1.5-1.6 year. ओके, सो दैट मीन्स अगर 10 लोग होते हैं तो 15 लाख का खर्चा आएगा। हाँ, तो ब्रॉडली सर सब मिलाकर के रजिस्ट्री ये वो एवरीथिंग इंक्लूडेड शुड बी एनीथिंग फ्रॉम 7 to 15 lakhs, उसमें सब कुछ हो जाना चाहिए। तो 7 to 15 lakhs तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट हो गई, और मंथली वो क्या रहा? सर अगेन साइज ऑफ प्रॉपर्टी पर है तो 2,000 पर हेड टाइप्स मंथली? मंथली। दैट इज, अगर आप सबसे छोटी लेते हो तो 2,000, बड़ी लोगे तो शायद 4-5 हजार हो जाएगा पर मंथ, पर मंथ पर पर्सन। 5,000 नहीं आता, 5,000 बहुत पैसा, 50,000 रुपया कहाँ मेंटेनेंस में खर्च करेंगे? राइट, मेंटेनेंस बेसिकली बिजली पानी यूटिलिटीज एंड कपल ऑफ केयर टेकर्स। ओके। एंड ये जो वो भी विलास आपने दिखाई थी ये कि इसकी वो क्या है? 2 bedroom 3 bedroom क्या है ये जो आपने पिक्चर दिखाई हुई है? दिस इज 3 bedroom सर, बट ये तो कस्टमाइज हो जाता है, इसको 2 bedroom के हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके। एंड ये पेमेंट जो है, दिस विल बी व्हाट, वन गो? सर दैट विल अगेन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी, इफ द प्रॉपर्टी इज रेडी तो 3 से 4 महीना, एनीथिंग 2-3-4 months। अगर कुछ बनाना है तो 1.5 से 2 साल लगता है। अब So you mean to say you are saying कि there are options of ready properties also, and one can actually go for a plot and buy and make a this thing property there. I mean, make a villa or whatever there. हाँ, That is what you are बिल्कुल। saying? हाँ 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 सर, हिमाचल और उत्तराखंड, एटलीस्ट आई नो अबाउट नॉर्थ इंडिया, वहां पर ऑफ लेट सच प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट की हर जगह डिमांड बढ़ी है, तो हिमाचल या उत्तराखंड भी उससे अछूते नहीं रह सकते थे, तो वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम 1 bedroom अपार्टमेंट्स टू मैसिव villas रनिंग इनटू 4 crore and 5 crores। So what is, I mean, what is beneficial? I mean, अपनी प्रॉपर्टी बनाई जाए या बनी बनाई खरीदी जाए? तो समय की मतलब ये तो एक समथिंग की वो जो 8-10-12 लोग देखेंगे उसके ऊपर है, बट इसमें अगर खुद ही बना रहे हैं तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ यू आर नॉट एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन अ थर्ड पार्टी बिल्डर की वो कब बनाएगा कब करेगा। ये 10-12 लोग मिलकर के बनाते हैं, वहां का कोई एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर हायर करके बिल्डर के साथ काम करने में ये होता है कि आपको थोड़ा सा कॉस्ट का फायदा हो जाता है, बट बहुत फर्क नहीं है। एक चीज जो रह गई, तो इंस्टॉलमेंट हाँ। जो है, अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है तो वो इंस्टॉलमेंट इस लीगल एंटिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगी? नहीं नहीं सर, मैंने तभी तो बोला अगर हम रेडी टू मूव इन खरीद रहे हैं तो 3-4 महीने में पेमेंट करना। अच्छा, ओके। अगर बनाएंगे तो 1.5-2 साल किसी भी प्रॉपर्टी को बनने में लगेगा,
तो 10 लाख रुपए जो देने हैं उसके लिए आपको थोड़ा समय मिल जाएगा। राइट 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 राइट, वो मैं कंफ्यूज हो गया था। राइट। भाई आप शुरू में जमीन खरीदेंगे तो लैंड वुड बी अराउंड 40% ऑफ द कॉस्ट, तो आपके 10 में से 4 लाख रुपए का इनिशियल वो हो गया। एंड देन अगर ये 18 महीने में बननी है तो हर 3 महीने पर 1-1 लाख रुपए की और बैलेंस इंस्टॉल। सो आपने खरीद ली, बेचेंगे कैसे? अगर सपोज आई आई हैव बॉट इट along with 10 other people and now I want to dispose it of my share. तो सर इट इज टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली तो यू आर अ शेयर होल्डर, एक्स बंदा आता है बाहर से, वो आपसे बातचीत करता है, एंड इट इज अ प्राइवेट transaction between you and the X person. He pays you money, you transfer the share, एंड जो आपने शेयर ट्रांसफर किए वो आपका सीए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाकर के, और बायर और आपका वो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, एंड यू आर आउट एंड द अदर पर्सन कम्स। सो टेक्निकली तो इट इज डुएबल एट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम्स ना, उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री विद द कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर्स चेंज होते रह सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल अपने शेयर्स बेचते खरीदते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या कोई खरीदने में इंटरेस्टेड होगा या नहीं। सो इट विल टेक सम टाइम, एंड अगर आपने आज खरीदी है, 6-8 लाख रुपया लगाया है, एंड धीरे 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 जैसे जैसे 12 लोगों ने खरीदा, 5-6 साल गए, अपने कोई फ्रेंड्स गए, उनके रिश्तेदार गए, तो फिर उसमें होता क्या है ना सर, जिन लोगों ने अच्छे से उसको इस्तेमाल किया होता है प्रॉपर्टी को, वो खुद ही चाहते हैं, उनका कोई दोस्त बोल देता है हमें भी दिलवा दो ये वो, तो ये आपस में ही ट्रेडिंग होती रहती है। आपको मैं ही बोल दूंगा मनीष सर आई हैड गॉन देयर, मेरा भी, तो यू आस्क समवन इन दैट स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप, यार वन ऑफ माय फ्रेंड्स वांट्स टू बाय, इज समवन वांटिंग टू सेल, और समय बीत जाएगा तो कहेगा हाँ जी मैं बेच दूंगा, मैंने 5 लगाए थे, मेरे को 10 मिलने चाहिए, 10 लगाए थे 20 मिलने चाहिए। सो द प्रॉपर्टी इज अप्रिशिएटिंग, इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग, but it takes 5-7 years for the sale to happen. पेपर Okay. टेक्निकली अप्रिसिएशन और उस सब में आने में टाइम लगता है। And how is that thing decided? I mean, my share, the selling price of that, total property की वैल्यू लगा के उसमें से पर पर्सन शेयर हाँ वैल्यू सर, आप जो निकालनी है। खरीद रहे हैं, आप जो भी कुछ खरीद रहे हैं उसका बेंचमार्क तो है ना मार्केट में। आज भी अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ऐसा तो है नहीं जो प्रॉपर्टी बेच रहा है इसके आगे वहां कुछ नहीं होगा या मार्केट बंद हो जाएगी। सो देयर इज ऑलवेज अ बेंचमार्क। जो आज 1 करोड़ की आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो 6 साल बाद अगर उस मार्केट में 2 करोड़ की बिक रही है, और इस 1 करोड़ में आपका 10 लाख का शेयर है, तो वो नेचुरली आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ होगी तो आपका शेयर 20 लाख हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आप थर्ड पार्टी से क्या प्राइवेट ट्रांजेक्शन करते हैं, आप उसको 22 पे बेचते हैं, 18 पे बेचते हैं, दैट इज बिटवीन यू एंड द थर्ड। Understood. Right, right, right. So, you have been in this domain, real estate, for a very long time. Any pro tip which you would like to share with us for people who are interested in going in for such kind of a venture, property investment? पहले तो ये कि आप जो भी खरीदे ना, इट शुड बी विद इन 6-7 आवर्स ऑफ ड्राइविंग टाइम। मतलब बहुत दूर Right. मत खरीद लीजिए ताकि आप उसको इस्तेमाल कर पाए। आइडियली Okay. 250 किलोमीटर तक बहुत हुआ, 300 350, बट 6 से 7 घंटा, बिकॉज सीधी आइडिया है सर। आप देखिए, इट इज लाइक यू बहुत काम कर लिया है, 3-4 महीने हो गए, टारगेट चेज कर रहे हैं या थक गए हैं समथिंग, और आप 1 हफ्ते की लंबी छुट्टी ली, तो 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए अगर आपने ये गोवा में कोई विला खरीद लिया तो फ्लाइट फिर बुक कराओ, फिर उतना सामान ले जाओ। ऑन दी अदर हैंड, इफ इट इज अ 7 आवर ड्राइव, आपने अपनी गाड़ी में अपना सामान रखा, किताब रखी, 2-3 बढ़िया स्कॉच की बॉटल्स रखी, वहां पहुंचे, लेजी सा मॉर्निंग में उठ रहे हैं, चाय पी ली है, फिर दिन में वो धूप और छाव में बाहर लेटे में हल्का सा कुछ लंच कर लिया है, शाम को डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर प्रेफरेंसेस कोई गजल वजल सुनी, 2-3 स्कॉच पिया, एंड बस दैट्स हाउ करो यू यार, स्ट्रेच विपुल योरसेल्फ क्या कर आउट। रहे हो? अब ऐसे लग रहा है कि अभी खरीद लेते हैं। सो वैसे भी पॉइंट, सर्दियां आ रही हैं।
Point is, it should be in that driving range, 250 to 300 crore. दूसरा, ये शौक की चीज है ना सब, तो जब खरीद रहे होते हैं सो उस वक्त में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गया, बट इट शुड हैव ऑल दी वर्क्स. जैसे हमने एक पीछे एक विला सेल किया था. इट वाज अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स. दे परचेज दिस फ्रॉम अ वेरी वेल नोन हॉस्पिटल इन दिल्ली, 10-12 लोग. सो उन्होंने पूरा टॉप ऑफ द लाइन, भैया मुझे इसमें डिश वॉशर भी लगा दो और बेस्ट ऑफ द कटलरी एंड सो इट वाज वर्क्स. वेदर इट कंबाइंड उनको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा, बट दे स्पेंड दैट मनी सो दैट वो जो भी वहां पर समय आकर के बिताते हैं, दैट वीक, 10 days, ओवरऑल 1 month in a year, they are able to enjoy that luxury. They are able to, soak in themselves. So these would be my 2 points. One, it should be within a drivable distance so that you are able to maximize the utilization. And आप यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करेंगे तो फिर आपको पीक सीजन की प्रॉब्लम नहीं है ना, कि मेरे को गर्मी में ही जाना है. आज मेरा बर्थडे तो मान लीजिए अक्टूबर में होता है, गर्मी नहीं है तो क्या होगा, आई एम गोइंग एंड स्पेंडिंग माई बर्थडे देयर, माई एनिवर्सरी, माई चाइल्ड्स बर्थडे, कभी न्यू ईयर पर चले गए, कभी दिवाली पे बहुत पोल्यूशन है तो एक हफ्ता वहां निकाल लिया. सो डिफरेंट टाइम्स, बिकॉज इट इज इन 7 hours ड्राइव, 6 hours ड्राइव. And it should be a property which welcomes you. उसमें ऐसे कायदे से लगेगी. If somebody decides कि हाँ ये this is a good idea or something and it's convinced, so how would you be able to help in any of these? हमने तो पीछे भी किया. We have done it. We have experience structuring the entire thing from start till last, forming the legal entity, finding the suitable property, and then helping to get the एक यूजर ऐप भी बनवा देते हैं हम तो उसमें, कि आपको एक दूसरे से बात करने की जरूरत ही नहीं. जो आपके बायलॉज है उनको यूजर ऐप में चेंज कर देते हैं कि भाई पीक पीरियड में 15 days का यूसेज पीरियड है एंड अदरवाइज इतना है, और वो सब करके एंड देन हेल्पिंग यू गेट दी मेंटेनेंस एंड ऑल, वहाँ लोकल टायर्स वगैरह किससे करने. सो for us it is a routine job. We handle the entire from start till end, and the entire headache is what we handle for our clients. काम है हमारा तो. Just मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा है कि it's a good idea for somebody who wants to start this as a business also. I mean, I remember वो अपना जो हमने वो टॉक किया था लैंसडाउन में होटल जिसने खरीदा था. I have invited him today, incidentally, Tilok Sharma. Yeah. So I mean, if somebody wants to have a small, not a very big thing, but some small property and for a commercial this thing, तब भी 4-5 लोग इसको मिलके इसी तरीके की चीज कर सकते हैं, right? So that's the reason why I've invited Tilok, कि जैसे he already has a resort, उसके आसपास में अगर आप कुछ बनाते हैं तो वो खाली टाइम में मैनेज करता है और अपना जब यूज करना हो जाती है यूज कर सकता. So he becomes, for him it becomes an additional inventory, and for the buyers it kind of works that you get a person helping you. Right. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.